مجھے آج دفتر سے نکلتے نکلتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ امی کی اب تک کئی بار کالز آ چکی تھی اور وہ بار بار گھر جلدی آنے کو کہہ رہی تھی، مگر میں اپنا کام مکمل کر کے ہی اٹھی۔ وقت دیکھا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ سارا اسٹاف 5 بجے ہی جا چکا تھا، صرف میں ہی رہ گئی تھی۔ میں نے آفس کو لاک کیا اور پارکنگ میں آ گئی۔ اندھیرا کافی زیادہ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے میں گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتی، اچانک عجیب معاملہ ہوا۔ ایک چھوٹی سی لڑکی جانے کہاں سے آ کر میری ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ میں نے بمشکل اپنی چیخ روکی اور ناگواری سے اس لڑکی کو دیکھ کر غصے سے کہا، یہ کون سا طریقہ ہے اور وقت ہے بھیک مانگنے کا؟ وہ کہنے لگی، باجی میں بھکاری نہیں ہوں، ایک مجبور لڑکی ہوں، میری مدد کریں، مجھے اپنی کار میں چھپا دیں۔ یہ کہہ کر میرے بغیر کچھ کہے وہ جلدی سے گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر بیٹھ کر سیٹ کے نیچے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں تو بوکھلا گئی تھی۔ سب کچھ ایک دم اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ اس کی مدد کروں یا نہیں۔ آج کل ویسے بھی شہر کے حالات ٹھیک نہیں، ہر طرف لوٹ مار کے واقعات ہو رہے تھے، تو اس لڑکی کی کیا مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیا پتا وہ فراڈ ہو، میرے اندر بیٹھتے ہی وہ پسٹل نکال لے اور اپنی مرضی کے راستے پر لے جائے اور آگے اس کے ساتھی بھی ہوں۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ میں نے اس لڑکی کو گھور کر کہا، نکلو میری گاڑی سے، جانے کون ہو تم؟ وہ کہنے لگی، باجی خدا کا واسطہ ہے، میری مدد کرو، میں بہت مشکل میں ہوں، وہ لوگ کسی بھی لمحے یہاں آ سکتے ہیں، پلیز آپ بھی گاڑی کے اندر بیٹھ جائیں۔ اپنے لہجے اور بات کرنے کے انداز سے وہ فراڈ نہیں لگ رہی تھی۔ میں کچھ سوچتے ہوئے دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی اور سوچا، میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب آگے خدا کی مرضی، اب آگے خدا میری اور میری گاڑی کی حفاظت کرے۔ یہ گاڑی میں نے چند ماہ پہلے ہی اپنی محنت کی کمائی سے لی تھی اور مجھے بہت عزیز تھی۔ میں نے اس لڑکی کو کہا، سنو لڑکی، اگر تم واقعی کسی سے چھپ رہی ہو تو پچھلی سیٹ پر جا کر نیچے لیٹ جاؤ۔ وہ جلدی سے سیٹ پھلانگ کر پیچھے جا کر سیٹ کے نیچے لیٹ گئی۔ اب باہر سے نظر نہیں آتا کہ اندر کوئی موجود ہے۔ ابھی میں نے گاڑی پارکنگ سے نکالی ہی تھی کہ مجھے سڑک پر بہت سے لوگ نظر آئے۔ وہ سب ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے جیسے کسی کی تلاش میں ہو۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور ان لوگوں کے بالکل پاس سے ڈرتے ہوئے گاڑی گزار دی۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو اس کے ساتھ ساتھ میں بھی پھنس جاتی۔ میں نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر اس لڑکی کو مخاطب کیا اور پوچھا، سنو لڑکی، کیا نام ہے تمہارا اور کتنی عمر ہے؟ پیچھے سے اس لڑکی کی آواز آئی، باجی میرا نام جویریہ ہے، میں 14 سال کی ہوں۔ مجھے بھی وہ بچی اتنی ہی عمر کی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں کوئی اور سوال پوچھتی، اچانک سڑک پر رش بڑھنے لگا تھا۔ میں نے احتیاط سے وہ موڑ کاٹا تو دھیان پھر سے اس لڑکی کی طرف ہو گیا۔ جانے اس وقت وہ کہاں سے آئی تھی، کون لوگ تھے اس کے پیچھے؟ میں نے دھیان سے گاڑی چلاتے ہوئے پھر سے اگلا سوال کیا، لڑکی وہ کون لوگ تھے، کیوں تھے تمہارے پیچھے؟ میرے اس سوال پر وہ چپ رہی۔ اس کی طرف سے جواب نہ ملا، شاید وہ اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر غصے سے پوچھا، اگر تم نے جواب نہیں دیا تو میں تمہیں سڑک پر اتار دوں گی، پھر وہ لوگ جو تمہارے پیچھے تھے تمہیں پکڑ کر لے جائیں گے۔ مگر میری دھمکی کے باوجود خاموشی چھائی رہی۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ میں تو اس کی مدد کر رہی ہوں اور یہ بتا بھی نہیں رہی۔ میں نے گاڑی ایک طرف روک کر کہا، چلو نکلو گاڑی سے۔ اب بھی کوئی جواب نہیں۔ میں نے اتر کر پچھلی طرف کا دروازہ کھولا کہ اسے باہر نکالوں، مگر اسے بے سود پڑا دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں نے اسے ہلایا جلایا، مگر وہ جانے کب سے جو یوں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ اب کیا نئی مصیبت گلے پڑ گئی۔ اسے ایسے بھی تو نہیں چھوڑ سکتی۔ اماں کے بھی مسلسل فون پر فون آ رہے تھے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ گھر لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ گاڑی گھر کے اندر لاک کی اور میں اسے اماں کی مدد سے اندر لائی۔ اماں نے اس کے منہ پر پانی چھڑکا تو وہ ہوش میں آئی۔ اس کا حلیہ بہت ابتر تھا اور لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اور یہ میں نے اب دیکھا تھا۔ میں اس سے پوچھنے لگی تھی کچھ کہ اماں نے اشارے سے منع کر دیا۔ پھر کہنے لگی، پہلے تم دونوں کچھ کھا پی لو، پھر باتیں کر لینا۔ میں اس لڑکی کو لیے کھانے والی میز پر آ گئی۔ اس نے یوں ڈٹ کر کھانا شروع کیا جیسے اس نے کئی دنوں سے کھانا نہ کھایا ہو۔ جب وہ اچھے سے کھا چکی تو میں نے کہا، اپنے ماں باپ کا پتہ بتاؤ، انہیں اطلاع کرنی ہوگی، وہ بہت پریشان ہوں گے۔ اس نے کہا، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں تو ایک یتیم خانے میں رہتی ہوں۔ میں چونک گئی، اماں بھی دم بخود رہ گئی۔ میں نے کہا، اچھا تو یہ بتاؤ کہ تم یتیم خانے سے رات کے اس پہر کیوں بھاگ رہی تھی؟ وہ سادگی سے کہنے لگی، باجی میں یتیم خانے سے نہیں، اپنے شوہر کے گھر سے بھاگ رہی تھی۔ کیا؟ میرا اور امی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ اتنی سی لڑکی شادی شدہ بھی تھی؟ میں نے تجسس سے اس کو کہا،
सुनो, मुझे शुरू से सारी बात बताओ कि तुम्हारी शादी क्यों और कैसे, कब हुई, तुम अपने शौहर से क्यों भाग रही थी। कहने लगी, बाजी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा नाम जवेरिया है। मैंने जब आँख खोली तो खुद को एक यतीम खाने में पाया। मुझे बताया गया था कि मेरे माँ बाप मुझे पैदा करके छोड़ गए। शायद मैं भी किसी की नाजायज़ औलाद हूँ। मैं बाकी लड़कियों के साथ खेल कूद कर बड़ी हो गई। जैसे ही कोई लड़की 14 या 15 साल की हो जाती है तो आपा जी उसकी शादी करवा देती थी। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हारी आपा कौन है? क्या तुम्हारी कोई और बहन भी है? कहने लगी, आपा जी यतीम खाने की इंचार्ज और मैनेजर हैं। वहाँ का उसूल है कि जैसे ही कोई लड़की बालिग हो जाती है, उसकी उम्र 14 साल हो जाती है, आपा जी उसकी शादी करवा देती हैं। मैं भी जब 14.5 साल की हुई तो मेरी भी शादी तय कर दी। शादी से पहले आपा जी मुझे कहने लगी, मैंने तुम्हारी शादी एक अमीर कबीर आदमी से तय कर दी है ताकि तुम्हारी जो ख्वाहिशें और हसरतें यहाँ पूरी नहीं हुई वहाँ जाकर पूरी हो जाए। वो बहुत अमीर है, उम्र में तुमसे थोड़ा सा बड़ा है, मगर तुम पहली कोशिश करना कि उसकी अताअत करो। मैंने आपा जी की बातों को दिमाग में बिठा लिया। आपको शायद 14 साल की उम्र में शादी का सुनकर हैरानी हो रही होगी, मगर यतीम खाने में जो लड़कियां होती हैं वो वक्त से पहले ही जवान और समझदार हो जाती हैं। खैर, मेरी शादी हो गई। मेरा शौहर उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था। शुरू शुरू में तो मुझे मालूम ना हुआ, मगर बाद में इल्म हुआ कि वो पीने पिलाने का शौक रखता है। बहुत जल्द उसका दिल मुझसे भर गया और वो मुझ पर जुल्म सितम करने लगा। हराम मशरूब पीकर वो अपने हवास खो देता और मुझे बहुत मारता। अगले दिन उसे कुछ याद भी नहीं होता था। मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी थी, मगर आपा जी रोजाना मिलने आ जाती और मुझे कहती कि सब्र करो, तुम्हारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। मगर अच्छे दिन के आते बुरा दिन आ गया। उस दिन मेरा शौहर घर आया तो मुझ पर बगैर किसी वजह के चिल्लाने लगा। फिर गुस्से में आकर उसने मुझे तलाक दे दी। मैं रोने लगी। मैं छोटी ज़रूर हूँ, मगर शादी और तलाक के बारे में अच्छे से जानती हूँ। मैं रोते हुए सामान पैक करने लगी, क्योंकि जाहिर है अब मैं वहाँ नहीं रह सकती थी। मगर मेरे शौहर ने मुझे जाने से रोक दिया। उसने कहा, तुम नहीं जाओगी, इसी घर में रहोगी। मगर मैं वहाँ कैसे रह सकती थी, इसलिए वहाँ से चली आई। मगर उसने अपने आदमी मेरे पीछे लगा दिए। मैं तो अपनी इज्जत बचाने को वहाँ से भाग गई थी। फिर आप नजर आई तो मैं फौरन आपकी गाड़ी में छुप गई। उसकी कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। बेचारी ने इतनी सी उम्र में इतने गम देख लिए थे। मैं 25 साल की हो गई थी, मगर अभी तक मैं अपने तल्ख तजुर्बात से नहीं गुजर रही थी कि जितनी वो। मैंने कहा, अच्छा चलो आज की रात यहीं रह लो, मैं सुबह तुम्हें तुम्हारे यतीम खाने में छोड़ आऊंगी। मैंने उसको सोने के लिए जगह और बिस्तर वगैरह दिया और खुद सोचने लगी कि कितनी सी उम्र में जिंदगी इम्तिहान ले लेती है। अम्मी को भी जवेरिया की कहानी सुनकर तरस आया था। सुबह मैंने नाश्ते के बाद कहा, जवेरिया चलो, मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें यतीम खाने में ड्रॉप कर दूंगी। वो अजीब से अंदाज में मुझे देख कर बोली, बाजी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे रख लें? मेरा मतलब है नौकरानी बना लें। मैं यतीम खाने दोबारा नहीं जाना चाहती। मैं उसे क्या कहती, मैं तो उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। आखिर मैंने पूछा कि तुम यतीम खाने में क्यों नहीं जाना चाहती, कुछ खास बात है? मेरे सवाल पर वो कुछ परेशान हो गई और कहने लगी, बाजी अगर मैं दोबारा यतीम खाने में चली जाऊंगी तो आपा जी मेरा हलाला करवा देगी। वो ऐसा ही करती है। जो लड़कियां तलाक लेकर आती हैं, आपा जी उन लड़कियों का हलाला करवा देती है। फिर कुछ पता नहीं चलता कि लड़कियां हलाले के बाद जाती कहाँ हैं। इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं हलाले वाली बात सुनकर हैरान हुई थी। मैंने कहा, अच्छा दफ्तर से आकर बात करेंगे। मैं दफ्तर में थी जब अम्मा के फ़ोन पर फ़ोन आने लगे। मैं मीटिंग में थी, इसलिए उठा ना सकी। 2 घंटे बाद मैंने अम्मा को कॉल की और पूछा, सब खैर तो है ना? अम्मा ने जो इंकशाफ किया उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। अम्मा कहने लगी, थोड़ी देर पहले पुलिस आई थी, जवेरिया को साथ ले गई। उसकी यतीम खाने की आपा जी भी आई हुई थी, वो लोग उसे साथ ले गए। मैं पछताने लगी कि उस वक्त फ़ोन उठा लेती तो शायद जवेरिया को जाने से रोक लेती। वो बेचारी अभी जाना ही नहीं चाह रही थी और वो लोग आकर ज़बरदस्ती ले गए। मैंने कहा, अम्मा उनको रोका क्यों नहीं और पुलिस हमारे घर तक कैसे पहुंची? अम्मा ने बताया कि पुलिस को पार्किंग लॉट में लगे कैमरे की मदद से नजर आया कि वो मेरी गाड़ी में बैठी है। उन्होंने मेरी गाड़ी का नंबर निकलवाया और इसलिए छापा मारने आ गए। अम्मा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो कानूनी लिहाज से अभी बालिग नहीं थी, तो उसको दोबारा यतीम खाने जाना पड़ा। मुझे जवेरिया की बातें याद आईं। अभी शायद वो कुछ मुझे बताना चाहती थी, मगर उसकी आपा जी आकर उसे ले गईं। जाहिर है हम उसे रोक नहीं सकते थे। मैं शाम को घर वापस आई। खाना वगैरह खाकर मैं अपने कमरे में गई। जैसे ही बेड पर लेटने लगी,
मेरी नज़र शीशे पर पड़ी। वहाँ एक कागज़ को टेप से चिपकाया गया था। मैं जल्दी से उठी और उस कागज़ को उतार लाई। जवेरिया ने जाते जाते मेरे नाम एक अहम पैगाम लिखा था, जो कुछ यूं था: बाजी, मैं जाना नहीं चाहती, मगर आपा जी पुलिस को ले आई हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। आप प्लीज़ मुझे बचा लें। उन्होंने जाने किससे मेरा हलाला करवाना है और जाने बाद में क्या होना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ बाजी, मुझे बचा लें। वहाँ मेरे साथ अब बहुत बुरा होने वाला है। बस इतना सा लिखा था। शायद जाते जाते उससे इतना ही लिखा गया था। मेरी मदद की ज़रूरत थी उसे, लेकिन क्यों? क्या वजह थी कि वो यतीम खाने की इंचार्ज ऐसा क्यों करती थी कि पहले 14 साल की उम्र की ब्याह और फिर तलाक होने पर हलाला? मैंने सोचा था कि किसी दिन यतीम खाने जाकर जवेरिया से मिल लूंगी और तफसील से पूछूंगी। अभी मेरे सर पर अपने बहुत से काम थे। मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था, इसलिए मुझे इसको चलाने के लिए अपना बहुत सारा वक्त दफ्तर में गुजारना पड़ता था। अपने हालात दुरुस्त करने का जो जुनून मेरे सर पर सवार हो चुका था, वो तब तक ख़त्म नहीं होना था जब तक मैं खुद को पहले वाले मकाम पर ना ले आती। असल में मेरे वालिद का अपना बिजनेस था और वो खूब फल फूल रहा था। उनके पार्टनर उनके दोस्त ही थे, मगर फिर उस दोस्त ने अब्बा को धोखा दिया और सारा बिजनेस बेचकर दूसरे मुल्क फरार हो गया। अब्बा दिवालिया हो गए, अकाउंट खाली हो गए। अब्बा इस सदमे को सह न सके और हार्ट अटैक से हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अब्बा के जाने के बाद मैं और अम्मी बड़ी मुश्किल से घर बचाने और दोबारा जीने के काबिल हुए। मैंने अम्मी से वादा किया था कि मैं अपना सब कुछ वापस लूंगी और नामवर बिजनेस वुमेन बन जाऊंगी। इसलिए तो सारा का सारा वक्त ऑफिस में ही मेहनत करते हुए गुजर जाता है। खैर, ये थोड़े दिनों बाद की बात थी कि अचानक डाकिया आ गया। कहने लगा, बाजी, आपके नाम खत है। मैंने देखा तो अंदर एक खाली सफ़ा था जिस पर बड़े बड़े अल्फाज में हेल्प मी लिखा हुआ था। नीचे जवेरिया लिखा हुआ था। खत पर कोई एड्रेस वगैरह नहीं लिखा था, इसलिए मैं परेशान हो गई कि जाने वो अब कहाँ है। मुझे लग रहा था कि मुझे अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वो बेचारी मेरी मदद की आस पर बैठी हुई है, मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैंने अम्मा को सारी बात बताई और कहा कि मुझे उसकी मदद के लिए जाना होगा। अम्मा को कोई एतराज़ ना हुआ और मुझे कहा, ठीक है, तुम मदद के लिए चली जाओ, मगर ध्यान से, ये बड़े लोग काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। मैंने समझकर सर हिला दिया। अपने प्लान के मुताबिक मैंने उसी दिन यतीम खाने का रुख किया। मैंने एक मजबूर और बेबस लड़की का रूप धारा हुआ था। मैंने उसे कहा कि मुझे काम पर रख लो, बेशक तनख्वाह न देना, बस सर छुपाने की जगह चाहिए मुझे। वैसे तो शायद वो ना रखती, मगर मुफ्त में काम करने का सुनकर उसने फौरन हामी भर ली और मुझे यतीम खाने के अंदर दाखिल कर दिया। वही आपा जी थी और यतीम खाने का सारा नज़्म नस्क उसी ने संभाल रखा था। मैंने इमारत के अंदर दाखिल होते ही जवेरिया को ढूंढना शुरू कर दिया था, मगर सैकड़ों लड़कियों में उसे तलाश करना, वो भी एक ही दिन में, मुमकिन न था। इसलिए मैं सुकून से सफाई के बहाने कमरे में जाती और सबको ध्यान से देखती, मगर मुझे बहुत मायूसी हुई जब मुझे वो कहीं भी नजर न आई। मैंने अब तक यतीम खाने का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन जवेरिया कहीं नजर न आई। उसने तो मदद का पैगाम भेजा था। मैं इसी परेशानी में गुम थी कि सुना यतीम खाने की किसी 14 साल लड़की की शादी है। मैंने उस दिन दफ्तर में होने वाले दूल्हे को देखा तो मैं दंग रह गई। उसकी उम्र 50 के करीब होगी। आपा जी ने खूबसूरत जहान लड़की की शादी इस बुढ़े अमीर आदमी से करवा दी। मुझे बेचारी लड़की के लिए अफसोस हुआ था। इसके भी तो अरमान होंगे और वो बेचारी भी तो सोचती होगी कि मैं कहाँ बूढ़े आदमी के साथ फंस गई। मैंने आपा जी से पूछा तो वो कहने लगी कि अमीर लोगों से मैं अपनी लड़कियों की शादी करवाती हूँ ताकि वो किसी चीज़ के लिए तरसे ना। मैंने वहाँ जवान लड़कियों में एक अनजाना सा खौफ देखा था। वो आपा जी से बहुत डरती थी। मैं बातों ही बातों में अक्सर कुछ पूछती तो वो चुप हो जाती। मुझे यहाँ आए 1 महीना होने वाला हो गया, मगर जवेरिया का कोई अता पता नहीं था। लड़कियों को भी उसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। वहाँ लड़कियों को दोस्ती करने की भी इजाज़त नहीं थी। अजीब ही घुटन वाला माहौल था वहाँ का। अचानक एक दिन एक अजीब बात हुई। थोड़े दिनों पहले जिस लड़की की शादी हुई थी वो तलाक लेकर वापस आ गई। उसकी तलाक पर बजाय अफसुर्दा होने के आपा जी के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, जैसे उसे ये खबर सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उसने शायद कुछ कहा था जो इतनी दूर से मुझे सुनाई न दिया। मैं उस लड़की से हमदर्दी करने उसके कमरे की तरफ गई कि मुझे सच में दुख हुआ था। अभी मैं दरवाजे पर ही थी कि अंदर से उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से कह रही थी, अब आपा जी मेरा भी रात को हलाला करवाएगी। तुम देख लेना, हर वो लड़की जिसकी तलाक हो जाती है उसी रात को उसका हलाला करवा दिया जाता है। इसलिए जब तुम्हारी शादी हो तो कभी भी तलाक मत लेना, या अगर ले लो तो यहाँ मत आना।
उस लड़की की बातें सुनकर मुझे अपने पैरों तले से जमीन निकलती महसूस हुई। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आपा जी हलाला क्यों करवा रही थी। हलाला तो उस सूरत करते हैं ना, जब दोबारा पहले शौहर से शादी करनी हो तो किसके साथ आपा जी हलाला करवाएंगी। मैं उस लड़की के कमरे के सामने छुप गई। आधी रात के वक्त उस लड़की के कमरे के अंदर 2-3 औरतें गईं और उस लड़की को साथ लेकर सहन में आ गईं। मैं भी वहीं थी और चोरी चोरी अपना मोबाइल निकाल लिया ताकि वहाँ जो कुछ हो रहा है वो रिकॉर्ड कर सकूं। उस लड़की को सहन में बंधी एक चारपाई के साथ बांध दिया गया और कहा कि तुम्हारा हलाला इस चारपाई के साथ किया जा रहा है ताकि तुम पाक साफ हो जाओ। ये सुनकर मेरे हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। एक चारपाई से हलाला! मेरे कानों ने ऐसी बात आज तक ना सुनी थी और ना आंखों ने देखी थी। मुझे तो ये था कि शायद किसी मुलाजिम वगैरह के साथ उसका हलाला करवा दिया जाएगा, मगर एक चारपाई के साथ मैं सुतून के पीछे छुपी हुई सब देख रही थी। आपा जी की साफ आवाज आ रही थी। वो कहने लगी, लड़की, तुम इस चारपाई के साथ पूरी रात बंधी रहोगी और जैसे ही सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़ेगी तुम बिल्कुल पाक हो जाओगी। ये कहकर उस लड़की को सब तन्हा छोड़कर अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गईं। एक मुलाजमा को उन्होंने उसकी रखवाली के लिए रख छोड़ा। जैसे ही वो सब इधर से गईं तो मैं वहां आ गई। मैंने उस मुलाजमा से कुछ दिन पहले ही दोस्ती कर ली थी, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे जरूर बताएगी कि क्या चल रहा है। मैंने कहा, इस लड़की को चारपाई के साथ क्यों बांध रखा है? कहने लगी, यहाँ इस यतीम खाने का रिवाज है कि 14 साल की नई नवेली दुल्हन अगर तलाक लेकर आ जाए तो उसका हलाला चारपाई के साथ करवा दिया जाता है। मेरे लिए ये बात कबूल करना मुश्किल हो रही थी। मैंने कहा, इसके बाद क्या होता है? कहने लगी, इसके बाद मुझे इल्म नहीं, क्योंकि सूरज की पहली किरण के साथ ही आपा जी उस लड़की को ले जाती है और इसके बाद वो लड़की कहाँ जाती है कुछ पता नहीं चलता। फिर वो लड़की इस यतीम खाने में नजर नहीं आती। मैंने कहा, अगर कोई लड़की फरार हो जाए? कहने लगी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। थोड़े दिनों पहले एक लड़की ने तलाक के बाद यहाँ वापस आने से मना कर दिया था और किसी के घर में पनाह ले ली थी, मगर आपा जी बड़ी ताल्लुकात वाली है, पुलिस लेकर पहुंच गई और उस लड़की को ले आई यहाँ। मेरा दिल थम गया। वो जवेरिया की बात कर रही थी। मैंने बेचैनी से पूछा, मुझे बताओ, यहाँ लाने के बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ? वो कहाँ गई? कहने लगी, उसका भी इसी तरह चारपाई से हलाला किया गया और बाद में कुछ पता नहीं चला। मुझे अब खुद ही मालूम करना था कि लड़कियां कहाँ जाती हैं। इसी तरह से मैं जवेरिया को बचा सकती थी। मैं आपा जी के कमरे के सामने से गुजरी तो वो फोन पर किसी से बात कर रही थी और सुबह 6 बजे का वक्त दे रही थी। सारी रात वो बेचारी लड़की रोती रही। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण उस लड़की के चेहरे पर पड़ी, आपा जी ने आकर कहा, ये पाक हो गई है, इसे मेरे कमरे में ले आओ। मुलाजमा ने ऐसा ही किया। वो चली गई, मगर मैं बाहर खड़ी छुप कर बातें सुनने लगी। आपा जी उससे कहने लगी, देखो, अब तुम्हारा हलाला करवा दिया गया है, अब तुम अपने शौहर के घर वापस जा सकती हो। कुछ ही देर में वो आने वाला होगा, उसके साथ चली जाना और कोशिश करना अपने शौहर को खुश रखो। थोड़ी देर में उस लड़की का शौहर पहुंच गया। जब वो आया तो उसके हाथ में एक काला बैग था जिससे वो जाते हुए आपा जी को दे गया। जाने इस बैग में क्या था? वो बेचारी लड़की जाना नहीं चाहती थी, मगर रोते हुए गई क्योंकि उसको कोई बचाने वाला नहीं था। मुझे इसमें जवेरिया की झलक महसूस हुई। वो भी शायद ऐसे ही रोती और तड़पती गई होगी। एकदम एक ख्याल से मैं चौंक गई। मुझे याद आया कि उस मुलाजमा ने बताया था कि जिस लड़की को पुलिस के जरिए यहाँ लाया गया था उसका हलाला भी करवाया गया था। कहीं उसे भी तो उसके शौहर के घर तो नहीं भेज दिया गया था। अभी मुझे थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई कि मैं उसे तलाश कर सकती हूँ। बस अब मुझे जल्द अज जल्द उसके शौहर का एड्रेस मालूम करना था और साथ ही ये भी कि जो बैग आपा जी के कमरे में पड़ा हुआ है, इसमें ऐसा क्या खास है। मैंने सारे दिन में कई बार चक्कर लगाए कि कब वो कमरे से बाहर निकले और मैं उसके कमरे की तलाशी लूं। दोपहर को फिर से मैं मौके की तलाश में गई तो वो फ़ोन पर बात करती हुई कमरे से बाहर चली गई। मेरे लिए इतना मौका काफ़ी था। मैं जल्दी से अंदर गई और पीले रंग का एक रजिस्टर खोला। उस रजिस्टर में उन सारी लड़कियों की तफसील लिखी हुई थी जिनकी शादियाँ की गई थी। मैंने जवेरिया का नाम तलाश करना शुरू कर दिया। उसका नाम भी एक सफ़े पर लिखा हुआ था। आगे उसके शौहर की मुकम्मल तफसील और उसके घर का एड्रेस भी था। मैंने जल्दी से उस सफ़े की तस्वीर खींची और उसके आने से पहले कमरे से बाहर आ गई। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किस मकसद के तहत वो कर रही थी। मैंने उसी वक्त जाकर उससे छुट्टी मांगी और यतीम खाने से बाहर आ गई। अब मेरा रुख जवेरिया के घर की तरफ था। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हो और वो वहीं हो। मुझे गेट पर चौकीदार ने रोक लिया। मैंने उसे कहा, साहब से कहो आपा जी की मुलाजमा आई हैं। इस तरकीब का असर हुआ और थोड़ी ही देर में
مجھے اندر بلا لیا گیا۔ میں اندر چلی گئی۔ وہ بوڑھا آدمی مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپا جی نے کہا ہے کہ حالات خراب ہیں، پولیس کسی بھی وقت چھاپا مار سکتی ہے، اپنی بیوی کو فی الحال میرے ساتھ یتیم خانے میں بھیج دو۔ وہ کہنے لگا، مگر آپا نے مجھے تو کوئی فون نہیں کیا، میں اسے فون کر کے پوچھ لیتا ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، فون کرنے کی غلطی نہ کرنا، کالز ریکارڈ ہو رہی ہیں، ثبوت بن جائے گا، بس تم جلدی سے اس لڑکی کو میرے ساتھ بھیجو، پولیس اور میڈیا والے یہاں کسی بھی لمحے پہنچ جائیں گے۔ میڈیا کا نام سن کر وہ گھبرا گیا اور اپنی بیوی کو باہر لایا۔ اسے دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ وہ واقعی جویریہ تھی۔ اس سے پہلے وہ مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتی، میں نے اشارے سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس کے بوڑھے شوہر کو کہا، آپا کا کہنا ہے کہ گھر میں رہنا اور کوئی کال مت کرنا، حالات ٹھیک ہوتے ہی لڑکی یہاں چھوڑ دیں گے۔ میں جویریہ کو لے کر باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی وہ مجھ سے لپٹ گئی، کہنے لگی، مجھے معلوم تھا آپ میری مدد ضرور کریں گی۔ میں اسے لے کر سیدھا اپنی دوست کے تھانے گئی۔ وہ ڈی ایس پی تھی اور بہت ایماندار پولیس آفیسر تھی۔ میں نے اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ وہ آپا جی ان لڑکیوں کو شادی کے نام پر عیاش اور امیر لوگوں کے سپرد کر رہی ہے اور بدلے میں بھاری رقم بھی لے رہی ہے۔ پہلے وہ شادی کرانے کے پیسے لیتی تھی اور پھر ایسے حالات پیدا کر دیتی تھی کہ وہ غصے میں طلاق دے۔ جب ان مردوں کا دماغ قابو میں آتا تو وہ حلالے کے نام پر اور پھر واپس بھیجنے کے نام پر ایک بار پھر پیسے بٹورتی۔ اس نے اب تک جانے کتنی ہی معصوم اور کم عمر لڑکیوں کو عیاش لوگوں کی بھیٹ چڑھایا تھا۔ میں نے اپنے موبائل میں جو ویڈیوز بنائی تھیں ویسے تو وہ بھی کافی تھیں، لیکن جویریہ بھی گواہی دینے پر تیار ہو گئی۔ میری ڈی ایس پی دوست نے مجھے اپنے تعاون کی مکمل یقین دہانی کروائی۔ وہ آپا جی اب تک اس لیے آرام سے اپنا کھیل جاری رکھے ہوئے تھی کیونکہ علاقے کے تھانے دار کو اس کا حصہ باقاعدگی سے پہنچ رہا تھا، اس لیے وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ میری دوست نے میرے مشورے پر میڈیا کو بھی کال کر دی اور ان کے ساتھ جا کر اس یتیم خانے پر چھاپا مار کر آپا نامی اس عورت اور اس کی تمام ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد اس رجسٹر کو اپنے قبضے میں لے کر ان تمام ٹھکانوں پر چھاپے مار کر لڑکیوں کو ان عیاش مردوں کے چنگل سے آزاد کروایا گیا۔ ان تمام مردوں کو گرفتار کر لیا گیا اور سب پر کیس بنا کر عدالت میں بھیجا گیا۔ وہ سب لڑکیاں نابالغ تھیں، ان کی شادی قانونی لحاظ سے غلط تھی، اس لیے لوگوں کی ہمدردیاں لڑکیوں کے ساتھ تھیں اور سبھی لوگ ان کے حق کے لیے آواز اٹھا رہے تھے۔ تھانے دار کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مضبوط ثبوتوں اور مختلف لڑکیوں کی گواہی کے سبب بہت جلد فیصلہ ہوا اور ان سب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا۔ اب وہ سب آزاد تھیں اور خوش بھی۔ میں نے بات کر کے امی کو یتیم خانے کی انچارج بنا دیا۔ وہ ویسے بھی گھر میں اکیلی ہوتی تھیں، اب تو انہیں ایک اچھی ذمہ داری مل گئی تھی کہ وہ سب لڑکیوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔